A very good morning and warm wishes to all of you. Respected guest speaker, Mr. Varun Kumar, Director, IMT College of Science and Technology, Dr. Poonam Pandey, Dean, IMT College of Science and Technology, Dr. C.S. Yadav, President and HOD, BSCCS, IIC, Dr. Vaishali, Convener IIC, Dr. Disha Vidyarthi, and all the coordinators and faculty representatives of IIC. And all the listeners present here on this virtual platform, I, Mehak Bhatia, Assistant Professor, BSc Computer Science, welcome all of you in today's session on Problem Solving and Ideation Workshop. I feel honored and privileged to have Mr. Varun Kumar as the resource person for today's workshop. Mr. Varun has done his master's in business administration with marketing and international business specialization. He has also worked as a marketing executive in Nature Trade Services Private Limited. Presently, he is working as an assistant professor at Aravali College of Engineering and Management. And along with that, he is also running his family business of batteries. He is doing great in his field, and I would like to welcome Mr. Varun for today's session. Sir, I would like you to share your experiences with the students and guide them about your problem solving and idea generation techniques so that it can help the students in their future. Over to you, sir. You can start the session now. Okay, thank you, ma'am. Good morning, everyone, and thank you so much, ma'am, for your kind words. I'll start my session by introducing myself. My name is Varun Kumar. I am assistant professor at Aravali College of Engineering and Management. I am so glad that you people joined me for today's session on the topic problem solving and ideation. I'll try my level best to express my views and share my knowledge with you all, and hope you find this session more productive and knowledgeable. So let's begin our session with a very motivational quote. Success is not an accident. It is the result of your attitude, and your attitude is your choice. Yes, my screen is visible to you. Yes, sir. Is my It is screen visible? visible. Okay. So let's start today's session on the topic problem solving and ideation. Yes, as the topic is problem solving and ideation. So my viewer, that what is problem solving, and what is ideation? Before starting the session, problem, we all know that problem is something which we can say the hurdles, the obstacles, or the difficulty which we face in our life. Problem solving, we can say the tentative solution of the problem. Why I have used tentative word here? Because this problem solution might be able to solve your problem, but might not be able to solve the problem as well. That's why I've used tentative. And ideation is basically the process of formation of ideas from conceptualization to implementation. Basically, we are going to discuss this topic with reference to the startups. Okay, but before coming to the startup, let's start with a very basic topic, which we have just now discussed. What is problem? We all know a thing that is difficult to deal with or to understand. Any question or matter involving doubt, uncertainty, or difficulty. Something that causes difficulty or that is hard to deal with. All comes under the problem. When we talk about problem, there are majorly very much problem which are faced by the college student as well, businessmen as well. ठीक है, अगर हम बात करें वुमेन्स अपने लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं. ठीक है, बीइंग अ टीचर हम अपने लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं. बट मेनली मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन अभी दो का इसलिए रखा है बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स माय कॉलेज स्टूडेंट, और हर वो बच्चा जो मुझे अभी सुन रहा है वो बिजनेसमैन बनना चाहता है. ठीक है, इसी व्यू पॉइंट को ध्यान में रखकर मैंने सिर्फ अभी दो लोगों का, वरना अगर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वी ऑल नो दैट देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस इन आवर डेली लाइफ. Okay, when we discussed about college student, there are few problems like homesickness, time management, depression, relationship, health, lack of motivation, roommates, choosing a major. अगर हम बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम कॉलेज स्टूडेंट फेस करता है. ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल, जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, नए नए बच्चे आते हैं, आप देखना कि कभी भी वो हम मान के चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं कि 100 बच्चा एडमिशन लेता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 100 बच्चा एडमिशन लेगा। बट जैसे जैसे सेशन धीरे धीरे पास ऑन होगा, आप देखो स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है। 100 में से 95 बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है, 90 बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है। जब एग्जाम टाइम आएगा तो मुश्किल से मुश्किल 85 बच्चा एग्जाम देगा। ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद 80 बच्चा आपको नेक्स्ट सेशन में दिखेगा। तो जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 100 से, तो अभी तो पूरी हमारी जर्नी एंड भी नहीं हुई, आप देखोगे 100 से स्ट्रेंथ किस पे आ गई, 80 पे आ गई। इसका मतलब उन 20 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों ड्रॉप आउट करा, अगर आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे ना, तो रीजन सिर्फ ये रहेगा कि बच्चे प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए। जब आप एक कॉलेज स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे आओगे तो नो डाउट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बट द थिंग इज नॉट दैट कि हम उन प्रॉब्लम्स को देखकर निकल लें कि हम सोचे कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम छोड़ देते हैं। अगर हम डट के सामना करेंगे तो अल्टीमेटली वी आर एबल टू विन एज वेल। ओके, अगर मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन कॉमनली क्या प्रॉब्लम फेस करता है? कैश फ्लो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हायरिंग टैलेंट्स, इनफेक्टिव मार्केटिंग, फिनेंसिंग, एक्सेसिंग फंडिंग, अट्रैक्टिव कस्टमर, चूजिंग व्हाट टू से। अब मैं ये आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, पेटीएम के एग्जांपल से। हमें पता है पेटीएम के ऑनर कौन है, फाउंडर कौन है। क्लास थिंग्स वन कि कौन है पेटीएम के फाउंडर, एक बार सोचो। जिनको याद आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया मैं बता देता हूँ, विजय शेखर शर्मा। ही इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। तो अगर आप विजय शेखर शर्मा की थोड़ी सी पीछे जाके बायोडेटा बायोग्राफी पढ़ोगे, तो आप ये देखोगे कि जो विजय शेखर शर्मा थे ये बहुत क्रिएटिव थे। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो 14 से 15 की एज में अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद एक साल इन्होंने प्रिपरेशन करी अपने एंट्रेंस एग्जाम की। इंजीनियरिंग में इनको एडमिशन लेना था। एक साल इन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी मन लगा के, और इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जो अपने आप में ही एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, बट जब इन्होंने एडमिशन लिया तो इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल और भी हाई स्कूल के साथ, जो बच्चे वहां से पढ़ के निकले थे वो उनके साथ बैठे थे। तो इनके लिए बहुत डिफिकल्टी हुई कि इनको, क्योंकि क्लास में मैक्सिमम टीचर जो लैंग्वेज यूज करते थे वो इंग्लिश यूज करते थे। ये फर्स्ट बेंच पे बैठा करते थे, बट धीरे धीरे जैसे मैंने बताया टाइम पास ऑन होता रहा, फर्स्ट बेंचर लास्ट बेंचर बन गया। तो बेसिकली रीजन क्या था कि कुछ प्रॉब्लम फेस करी। हालांकि देखो इन्होंने गिव अप नहीं करा, इन्होंने अगर प्रॉब्लम फेस करी, इन्होंने सारी प्रॉब्लम के साथ डट के मुकाबला करा। ठीक है, और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट भी करी। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेटीएम की, तो इन्होंने पेटीएम कैसे स्टार्ट करा। देखो बैंक जो हमारे थे वो ऑनलाइन मूव तो कर गए थे, बट इन्होंने कोई भी ऑल्टरनेटिव वे पेमेंट का नहीं फाइंड आउट करा था। आप बैंक में जाके देखो, आपको बड़ी बड़ी क्यूज दिखती थी। ठीक है, अगर आपको कोई पेमेंट करनी है अपने फ्रेंड को, तो उसके लिए आपके 1.5 से 2 घंटे कहीं नहीं गए, क्योंकि आप पहले बैंक जाओगे, बैंक में जाने का जो टाइम आपका लगेगा, फिर बैंक में लंबी लंबी क्यूज होती है, उस क्यूज में आपको खड़े रहना पड़ेगा, फिर आपका नंबर जब आएगा, फिर आपको वो लंबा एक फॉर्म होता था वो फिल करना पड़ता था, तब जाके आप अपना अपने फ्रेंड को पैसे पे कर सकते थे, और वो पैसा भी रेंडमली नहीं जाता था उसके अकाउंट में, कुछ टाइम लगता था। तो बेसिकली विजय शेखर शर्मा ने इन्हीं सब चीजों को आइडेंटिफाई करा और सोचा कि क्या ऐसा किया जा सकता है जो इस प्रॉब्लम से, जो हर ह्यूमन बींग्स फेस कर रहा है, हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इम्प्लीमेंट करा पेटीएम। अब बेसिकली पेटीएम का आइडिया इनके माइंड में कैसे आया, ये एक बार चाइना में गए थे, वहां एक बड़े सुपर स्टोर स्टोर में इन्होंने शॉपिंग करने के लिए गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। वहां इन्होंने देखा कि जो बिलिंग की लाइन है वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बट वहां पे बहुत तेजी से कस्टमर डीलिंग हो रही है, कस्टमर जा रहा है, वो पैसा भी पे कर पा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या है जो ये इतनी जल्दी हो पा रहा है। तो बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा एनालाइज करा, देखा शॉपकीपर जो था वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्कैनर, और हर कस्टमर के फोन में था क्यूआर कोड। ठीक है, अब वो शॉपकीपर क्या कर रहा था, वो स्कैनर से क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था, और अकाउंट कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जा रहा था। ठीक है, और शॉपकीपर के अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा था, और शॉपकीपर कस्टमर के अकाउंट में, सॉरी, कस्टमर के फोन में बिल पास कर देता था। तो बेसिकली उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मॉडल को इंडिया में लाया जाए।
बट इंडिया में लाना बहुत इजी नहीं था, क्योंकि अगर हम शॉपकीपर की बात करें, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको छोटे से छोटा शॉपकीपर और बड़े से बड़ा शॉपकीपर मिलेगा। अब बड़ा शॉपकीपर तो इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं छोटे शॉपकीपर की बात करूं, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो इन्होंने इसको 180 डिग्री मूव कर दिया। 180 डिग्री मूव कैसे करा? इन्होंने सोचा कि हमारे हर किसी के पास, इंडिया में मोबाइल फोन हर किसी के पास है, तो क्यों ना मैं सिर्फ शॉपकीपर को क्यूआर कोड दे दूं, क्योंकि क्यूआर कोड रखना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, हर शॉपकीपर रख सकता है। तो इन्होंने इसी आइडिया पे काम करा और इसको थोड़ा सा रोटेट करा और हर शॉपकीपर के पास क्यूआर कोड रखवा दिया। और बीइंग अ ह्यूमन, हमें पता है कि हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्कैनर, जो कि कैमरा, इन सबका कॉम्बिनेशन क्या है? मोबाइल फोन। तो हम, कस्टमर शॉप पर जाएगा, मोबाइल फोन से स्कैन करेगा। थोड़ा सा देखो, अगर आप मॉडल मिलता जुलता है, बट इन्होंने ऑपोजिट करा। ऑपोजिट क्यों करा? क्योंकि ऐसे थोड़ी उसी मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर कर देते तो फेलर पेटीएम का होना बिल्कुल जायज था, कि पेटीएम फेल हो जाता। लेकिन उन्होंने उस मॉडल को थोड़ा सा ऑपोजिट करा, थोड़ा सा रिवर्स करा, और ये सोचा कि हमारे जो कस्टमर है, क्या वो इस मॉडल को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या हमारे जो शॉपकीपर है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे, रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कोई पेटीएम का क्यूआर कोड अपने पास रख के बैठा है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि पेटीएम के लिए आपका अकाउंट बैंक में होना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर अपने वॉलेट में पैसा रखते हो, तो वॉलेट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को भी फेस करा। अब देखो, इस इन सब के बाद पेटीएम को एक सक्सेस मिली। बट जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको सक्सेस मिल भी गई, दैट डजंट मीन कि अब प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी। जब पेटीएम बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया, तो पेपाल के फाउंडर थे, उन्होंने पेटीएम पर केस कर दिया। केस क्यों करा? क्योंकि अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे पेटीएम का और पेपाल का, तो आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर होने की वजह से पेपाल को लगा कि इन्होंने हमारा आइडिया चुराया है, और अगर ऐसा ही रहा तो पेटीएम पेपाल से आगे निकल जाएगा। हालांकि जो विजय शेखर शर्मा है, उन्होंने उनको समझाया कि भैया, आप वर्ल्ड में डील करते हो और हमारा पेटीएम विद इन दी कंट्री डील कर रहा है। बट उन्होंने फिर भी केस करा। अब देखो, अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बाद भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ से नहीं गई। तो कहने का मतलब क्या है? कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो ये मत सोचो कि यार मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। चाहे आप किसी को भी देख लो, अपने नियर बाय हमारे पेरेंट्स को देख लो। ठीक है, बीइंग अ पेरेंट्स, हमारे फादर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स में वो भी हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, कि नहीं, इस प्रॉब्लम से तो मैं डील ही नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में आए, तो बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। वेज ढूंढो कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके। यस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। Problem solving requires both an ability to correctly define a problem and finding a solution to it. Ideation, in turn, is often regarded as creativity, the ability to come up with new ideas and ways of doing of testing the ideas and thus solving problem. ठीक है, अगर प्रॉब्लम है लाइफ में, तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचो। सी, इफ यू हैव आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल नहीं है। लोग वो फेल हो जाते हैं जो प्रॉब्लम को ही सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, आप कॉन्टिन्यूअसली काम करे जा रहे हो, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रॉब्लम को आपने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करा। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सोचो कि बेसिकली वो प्रॉब्लम क्यों है, क्या उसका रूट कॉज है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे पास में आई थी, तो कैसे लोगों ने डील करा था। इन सब चीजों को जब आप स्टडी करोगे ना, थोड़ी सी रिसर्च करोगे, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मैं आपको ये ओला के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। डू यू guys know that Ola would not exist if it were not for a really unprofessional cab driver? See, at that time, Bhavish Agarwal was running an online holiday and tour planning service and was struggling to keep that business afloat. He was doing a lot of work himself, and the response he was getting from customer was underwhelming. Then, while he was traveling between Bengaluru and Bandipur for this business, his cab driver tried to renegotiate the price while they were on the road. And when Bhavish was not willing to budge, the cab driver kicked him out. He was stranded on the side of the road, and this experience was a light bulb moment for him. He realized the problem of unprofessional cab driver behavior was actually pretty commonplace in India. So, in 2010,
He set out to solve it by pivoting his business away from holiday and tours and towards ride hailing, and that's how Ola Cab was created. I hope आपको ये केस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भावेश अग्रवाल एक बार अपने ट्रैवल कर रहे थे बेंगलुरु से बंदीपुर, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए जो वो रन कर रहे थे, होटल एंड टूर एंड ट्रेवलर करके। सो बेसिकली जब वो ट्रैवल कर रहे थे, कम्यूट कर रहे थे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो उन्होंने देखा जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने उसके साथ बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर करा। किसने? ड्राइवर ने भावेश के साथ। एक्चुअली उसने बोला ड्राइवर ने कि सर आप मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दो। तो भावेश ने बोला क्यों मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया था तो अब आप रीनेगोशिएट क्यों कर रहे हो। तो ड्राइवर ने भावेश के साथ बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर करा, उसको अब्यूज करा और उसको बीच रोड पे उतार दिया। अब भावेश जो थे वो साइड में जाके खड़े तो हो गए, बट उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो आज मेरे साथ हुआ है ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ होता हो। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, प्रॉब्लम को डिफाइन कर। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा? रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन मतलब कि अगर उस ड्राइवर ने मेरे साथ अनप्रोफेशनल बिहेवियर करा तो इसके पीछे रीजन क्या था। रीजन सिर्फ इतना था क्योंकि हमें पता है, ड्राइवर्स को पता है कि हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव वेज नहीं है। उस टाइम तो हर किसी के पास कार भी नहीं होती थी, और आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एक प्लेस से कम्यूट करने के लिए दूसरे प्लेस में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस भी आपके पास अवेलेबल नहीं होते थे। इसलिए ड्राइवर्स का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सॉल्यूशन जनरेशन। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां से आप बेसिकली टैक्सी बुकिंग कर सकते हो। आप अपने घर पर बैठ के जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वहां तक की आप कैब बुक कर सकते हो। बेसिकली क्या फिर सॉल्यूशन क्या निकल के आया? सोचो क्या निकल के आया? ओला निकल के आया। ठीक है, सॉल्यूशन जनरेशन मतलब बेसिकली ओला उन्होंने कमेंट्स करी, जिसका मेन कंसर्न क्या था, मेन एम क्या था, कि हम लोगों को पिक करेंगे उनके डोर स्टेप से और उनको ड्रॉप करेंगे उनके डेस्टिनेशन पे, और नेगोशिएशन जो भी है वो पहले ही हो जाएगा। जब हम ओला बुक करते हैं तो नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कि वो चार्जेस आपको दिखा देते हैं कि 400 या 500। इफ यू फाइंड इट सुटेबल तो आप उसको बुक करो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो आप मत करो। बट कोई प्रेशर नहीं है आपके पास कि आपने अगर एक बार लोकेशन सर्च कर ली तो यू हैव टू बुक इट। ठीक है, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, ओयो को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करा तो उन्होंने देखा कि चीजें बहुत हद तक ठीक हुई है। मतलब जो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी, अब लोग एक्चुअल में वो प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर बैठ के चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों को बुक कर सकते हैं। अगर उनको कहीं जाना है तो वो घर बैठ के अपना आराम से अपना कन्वीनियंस बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इवेल्युएशन। डिड सॉल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम? यस। अगर ओला से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या होता? फिर हमें दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है। इसका मतलब या तो हमने प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई नहीं करा, या फिर प्रॉब्लम सही से आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन निकल के आया वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं निकल के आया, हमें और काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सब हो जाता है देन यू कैन क्लोज इट। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी, आइडिया, स्टार्टअप, इनोवेशन। यस, स्टूडेंट्स इस चीज को समझना कि अगर ये सब चीजें इसके बहुत फेवर में जा रही है, बहुत अपलिफ्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं आइडिया की, तो जितना अच्छा आइडिया होगा उतना अच्छा स्टार्टअप होगा। एग्री? हमारा आइडिया ही अगर बहुत बेकार था तो आप कैसे कह सकते हो कि स्टार्टअप अच्छा होगा? ठीक है, आइडिया पे आपको काम करना है। आप लोगों को पता है ओयो के फाउंडर कौन है? सोचो ओयो के फाउंडर्स कौन है। अगर याद आया वेल गुड, नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल। अब बेसिकली ओयो का कैसे स्टार्टिंग हुई, ओयो कैसे स्टार्ट करा, रितेश के माइंड में ऐसा क्या आया स्टार्ट करना। सी, अगर आप उनकी केस स्टडी पढ़ोगे, ओयो की पढ़ोगे, तो आप देखोगे जो रितेश अग्रवाल है वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट करी, ही वॉज जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास, उसके बियॉन्ड उन्होंने एजुकेशन नहीं ली। तो हम लोगों का एक मिथ होता है ना, एक नोशन बन गया होता है कि नहीं, अगर हमें कुछ करना है लाइफ में देन वी हैव टू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईएम्स, आईआईटीज। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कैपेबिलिटीज है, आपके पास स्किल है, तो आप 12th पास करके भी एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। यस, बैक टू द टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया, ओयो का स्टार्टिंग जो थी वो रितेश अग्रवाल ने करी थी।
रितेश अग्रवाल को ट्रैवलिंग का बड़ा इंटरेस्ट था। जब उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट करी तो वो क्या कर उन्होंने इंटर्नशिप करनी स्टार्ट करी। बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटर्नशिप करते थे। वहां से जो पैसा आता था उस पैसे को वो कहीं खर्च नहीं करते थे, वो ट्रैवलिंग में खर्च करते थे। बस आनंद विहार आईएसबीटी से बस पकड़ ली। अब वो बस चाहे उनको जम्मू ले जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश ले जाए, ठीक है, चाहे वो राजस्थान ले जाए, मनाली ले जाए, बट उनको ये था कि मुझे ट्रैवल करना। अब जब वो ट्रैवल करते थे ना तो उन्होंने सपोज वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी जो बहुत कॉमन थी। वो ये थी कि रूम्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, बहुत लोग जो लोग अपनी फैमिली के साथ आते थे उनको रूम्स नहीं मिलते थे। तो वो क्या क्या करते थे, रात विंटर्स के सीजन में भी रात वो या तो बस में सोते थे या अपनी कार में सोते थे। तो जो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। ठीक है, भाभी सॉरी रितेश के साथ भी ये चीजें कई बार हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आए। तो उन्होंने स्टार्ट करा था ओरेवल। याद रखना, ओयो से पहले ओरेवल आया था। ओरेवल का काम वही था जो ओयो का है, बट ओरेवल नहीं चल पाया था। क्यों नहीं चल पाया था? क्योंकि आपने वेबसाइट बना दी, आपने बुकिंग लेनी स्टार्ट कर दी, बट सर्विस क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था रितेश के लिए। तो बेसिकली ओरेवल के लिए बहुत अच्छे फीडबैक नहीं आए थे। ओरेवल पे लोग ट्रस्ट भी नहीं करते थे। तो ओरेवल को फाइनली रितेश को बंद करना पड़ा। बट उन्होंने सोचा कि अब अगर मैं ओयो स्टार्ट करूंगा तो जो ओरेवल के साथ हुआ है वो ओयो के साथ नहीं होने दूं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ओरेवल में ना उन्होंने बहुत छोटे छोटे होटल्स के साथ मर्ज करा था कि मैं आपके होटल के साथ काम करूंगा, ओरेवल आपके होटल के साथ काम करेंगे। तो ऐसे ही गुड़गांव में भी कुछ होटल्स के साथ करा था। तो गुड़गांव में एक छोटा सा होटल था जिसकी ऑक्यूपेंसी 20% से भी कम थी। ठीक है, तो जब रितेश उसके ऑनर के पास गए, उन्होंने उसको ओयो का कंसेप्ट समझाया। तो बेसिकली उस पर्सन ने बोला कि वैसे तो मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये ओयो काम करेगा या नहीं करेगा, बट फिर भी 20% ऑक्यूपेंसी मुश्किल से मेरी एक मंथ में आती है। तो इससे बुरी हालत और क्या ही होगी, जो होगा इससे अच्छा ही होगा। तो ऐसा कह के उन्होंने 1 महीने के लिए वो होटल रितेश को दे दिया कि आप 1 महीना चला। अब रितेश ने एक्चुअली इस होटल में थोड़ा सा काम करा, सर्विस क्वालिटी पे काम करा। बेसिकली आप ये मान के चलो कि फ्रंट एंड मैनेजर 1 महीना वही थे उस होटल के। तो लास्ट में जब उन्होंने प्रॉपर काम करा, रूम की सर्विसेज पे काम करा, लाइटनिंग पे काम करा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा, तो लास्ट तक आते आते उनकी प्रॉपर्टी 90+ ऑक्यूपेंसी पे चली गई। आप देखो, 90+ ऑक्यूपेंसी, कहाँ 20% ऑक्यूपेंसी और कहाँ 90+ ऑक्यूपेंसी। बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गए थे। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको पता है हमारे इंडिया में कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ना बहुत जल्दी से फेमस होती है, बहुत जल्दी से प्रमोट होती है। तो बस लोगों को लगा कि यादव जी की प्रॉपर्टी पे कुछ टाइम पहले तक तो मुश्किल से मुश्किल 20% लोग भी नहीं दिखते थे। बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। तो लोगों ने कहा कि इन्होंने ना किसी ओयो के साथ अटैच करा है, क्यों ना हम भी ओयो के साथ अटैच हो। तो ऐसे ही हर होटल ओयो को कॉल करने लगा और बोला कि हमें भी आपका ब्रांड नेम चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि उस प्रॉपर्टी को आपने अपना ब्रांड नेम दिया तो वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुए और ओयो को इतनी सक्सेस मिली। आज अगर आप देखोगे तो ओयो के मोर देन 2 लाख होटल है जो हमारे विद इन द कंट्री काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आप सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने जस्ट अपनी हाई स्कूलिंग पास करी थी और उन्होंने ये स्टार्टअप कर, बेसिकली एक आपको अगर पता होगा जो पेपाल के फाउंडर हैं पीटर थियल। ठीक है, ये बेसिकली $1 लाख देते हैं स्टूडेंट्स को 20 से बिलो एज के, जो बट द कंडीशन इज कि आपको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। इनका मेन कंसर्न ये रहता है कि क्यों ना आप लोग कॉलेज छोड़ के आप बिजनेस पे इनिशिएटिव करो, बिजनेस पे पैसा लगाओ। तो जब रितेश को पता लगा तो उन्होंने भी पीटर थियल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दिया। और कहते हैं ना, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो जहां जब उनकी चाह थी तो उनको राह अपने आप मिल गई। एशिया से फर्स्ट टाइम कोई पीटर थियल फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था और वो कौन था? रितेश। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मत सोचो कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, रास्ता तो रितेश को भी नजर नहीं आया था, रास्ता तो भाविश को भी नजर नहीं आया था, रास्ता तो अगर हम बात करें विजय शेखर शर्मा की तो उनको भी नजर नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद आज वो कितने सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, ये मैंने जस्ट आपके साथ शेयर करा है। आई होप कि आप लोगों को भी पता हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितना अच्छा आइडिया उतना अच्छा स्टार्टअप। अब अगर हम बात करें इनोवेशन की, तो व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मतलब कॉन्टिन्यूअस रिसर्च करना, कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्ट करना, कॉन्टिन्यूअस डेवलप करना। देखो, जहां पर आपने ये सब चीजों को करना बंद करा, ये मान के चलो कि आप डिक्लाइनिंग फेज में आ गए।
ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेशंस में कि फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फर्स्ट लेवल को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी बहुत हार्डवर्क करने के बाद एक ब्रांड नेम बन गई, बट अगर वो अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी सर्विसेज पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेगी, तो वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जब वो डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो इनोवेशन आपको हर डोमेन में करना है, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो, चाहे वो प्रोसेस इनोवेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसका एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा नोकिया का। एक टाइम ऐसा था कि जब आप देखो, नोकिया इज नॉट समहाउ लेस देन एप्पल फोन इन टूडेज एरा, अगर मैं बात करूं। ठीक है, नोकिया जिस टाइम चलता था तो वो एप्पल उस टाइम का था। आज के टाइम में हमें पता है एप्पल फोन की क्या वैल्यू है, उस टाइम नोकिया फोन की वो वैल्यू हुआ करती थी। तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो इनोवेशन, नोकिया ने एक गलती करी जिस टाइम एंड्रॉइड का ट्रेंड था, एंड्रॉइड मार्केट में आया था, तो उसने स्विच नहीं करा, उसने अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करा, जो बहुत बड़ा रीजन था नोकिया के फेलियर का। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप इस चीज को समझोगे कि इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में। ये मिस्टेक, ये मिथ मत पालना, ये नोशन मत पालना कि अब हमारा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया, अब हमें इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू कॉन्टिन्यूअस वर्क ऑन दैट थिंग्स। ओके, यस। नेक्स्ट इज स्टाइल्स ऑफ आइडिएशन। आइडिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, आइडिएशन बेसिकली आपका पार्ट होता है डिजाइन थिंकिंग का। और आइडिएशन मतलब क्या होता है, जस्ट इन द बिगनिंग ऑफ सेशन मैंने आपको बताया था ना, आइडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हम बात करते हैं स्टाइल्स ऑफ आइडिएशन की, तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं आइडिएशन की। जैसे सबसे पहला क्या है, प्रॉब्लम सोल्यूशन। ये सारे स्टाइल्स आइडिएशन के हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको ज्यादा क्लियर। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन की, दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इज वेयर एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम दैट इज सब्सिक्वेंटली सॉल्व। क्या मतलब है इसका, कि ऐसी प्रॉब्लम जिस पे आप काम कर सकते हो, जिसको आप सॉल्व कर सको, जो किस क्या जिस जो बेसिकली किसने करा, रिलायंस जियो ने करा। अगर आप देखोगे तो रिलायंस जियो ने प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक को यूज करा था। कैसे यूज करा था, जिस टाइम रिलायंस जियो मार्केट में आई थी, आप देखोगे कि 13 ऑलरेडी टेली कम्युनिकेटिंग सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल थी और अच्छा खासा शेयर कैप्चर करके बैठे थे। तो उस टाइम रिलायंस जियो के लिए आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो बेसिकली रिलायंस जियो ने क्या करा, कुछ काम करा, उसने एनालाइज करा कि इस देखो, हर कोई इंटरनेट यूज करना चाहता है, हर कोई मैक्सिमम इंटरनेट यूज करना चाहता है। इंटरनेट को यूज करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, बट जिस उस टाइम पर जो टेलीकम्युनिकेटिंग सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल थी, वो हमको जो डेटा कंजम्पशन के लिए डेटा देती थी, वो बहुत लिमिटेड देती थी और बहुत ज्यादा चार्ज करती थी उस डेटा के लिए। बट रिलायंस जियो ने क्या करा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, जब मार्केट में आया तो आप देखोगे एक सेचुरेटेड मार्केट को, एक सेचुरेटेड मार्केट को वो बिल्कुल हिला के चला गया। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या करा कि अपने कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा चार्ज करो, बहुत लिमिटेड डेटा दो, उस चीज को रिलायंस जियो ने बिल्कुल भी एग्री नहीं करा। उसने सोचा कि अगर प्रॉब्लम है डेटा कंजम्पशन को लेकर, कि लोग डेटा यूज करना चाह रहे हैं बट वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको बहुत लिमिटेड मिल रहा है, मैं उनको एक्सेसिव अमाउंट में दूं। तो दैट इज व्हाट प्रॉब्लम सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव आइडियाज, डेरिवेटिव आइडियाज मतलब दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग आइडिया। मतलब आप कोई एग्जिस्टिंग आइडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूँ जोमेटो की, अगर आपको पता हो कुछ टाइम पहले जोमेटो ने बोला था कि हम अपनी फूड डिलीवरी विद इन 10 मिनट्स करके दिखाएंगे। मतलब आप ऑर्डर प्लेस करो, 10 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये बेसिकली जोमेटो ने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। अब बेसिकली उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कि जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये पता लगाएंगे कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हमें कहाँ से मिलते हैं और सबसे ज्यादा ऑर्डर किस चीज के मिलते हैं, और हम उसी के नियर बाय एक हब ओपन कर देंगे। अब वो हब में हम 80 to 90% उस खाने को कुक करके रखेंगे, जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा हम उसको 100% कुक करेंगे और डिलीवर कर देंगे। हालांकि अभी तक आप देखोगे जोमेटो इस पर काम नहीं कर पाया है। वो हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस चीज को रिपीट। तो डेरिवेटिव आइडियाज मतलब कि आप अपने एग्जिस्टिंग आइडिया, आप अपने एग्जिस्टिंग आइडियाज में, एग्जिस्टिंग कंपनीज में कुछ बेटर लेके आ रहे हो, कुछ इंप्रूव कर रहे हो।
ठीक है। इम्प्रूवमेंट साइकिल जो विजय शेखर शर्मा बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एजिलिटी स्टेबिलिटी, एजिलिटी स्टेबिलिटी मतलब पहले आप एजिलिटी करो, उसके बाद स्टेबिलिटी करो, फिर एजिलिटी करो, फिर स्टेबिलिटी करो। ये नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक आइडियाज। सिम्बायोटिक आइडियाज मतलब दिस इज अ कॉलिजन ऑफ सेवरल इनकम्प्लीट आइडियाज दैट कंबाइन टू क्रिएट अ फुली पैक्ड होलिस्टिक आइडिया। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में कुछ कमी है, तो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ लो जिस कंपनी में वो कमी बेसिकली नहीं है, या उस कंपनी का आपकी वीकनेस दूसरी कंपनी का आप कह सकते हो एक स्ट्रेंथ है, जैसा किसने करा, वोडाफोन और आइडिया ने। यस। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो सबसे टेकल या सबसे डिफिकल्ट चीज हम कह सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। क्लास अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात करूं, तो आप देखोगे कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ मेथड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली मेथड्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है स्टूडेंट, सोचो, थोड़ा सा सोचो। आई होप कि आपने ये वर्ड के बारे में पहले भी सुना होगा। व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? Yes, a group problem solving techniques that involves the spontaneous from all member of the group. ब्रेनस्टॉर्म होता है, कुछ नहीं होता, सिंपली टर्म्स में अगर हम बात करें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्रुप में बैठकर लो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मेरे फ्रेंड को मुझसे ज्यादा नॉलेज है, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ बैठा, मैंने उसको बोला कि ये प्रॉब्लम है, आप बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप अकेले भी कर सकते हो, आप ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, आप देखो फ्लिपकार्ट किसने स्टार्ट करा था। इस सेशन के थ्रू ना स्टूडेंट्स मैं आपके जी के जरूर इम्प्रूव कर दूंगा। बताओ किसने स्टार्ट करा था? फ्लिपकार्ट। अगर हम देखें फ्लिपकार्ट जो स्टार्ट करा था वो सचिन बंसल और बिनी बंसल ने स्टार्ट करा। तो उन्होंने बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करी थी। वो अमेजोन में जॉब करते थे और अच्छे पैकेज पे थे। ठीक है, बट स्टिल उनको लगा कि इंडिया में ऐसा कुछ करना चाहिए जो बेसिकली कस्टमर घर बैठे सामान मंगा सके। ये क्या था, ये उन्होंने ब्रेन स्टॉर्म करा। अब देखो फ्लिपकार्ट को स्टार्ट करना, फ्लिपकार्ट को सक्सेस दिलाना बहुत ज्यादा इजी नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम पे कैश ऑन डिलीवरी का कंसेप्ट नहीं था। कैश ऑन डिलीवरी का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली फ्लिपकार्ट से ही आया था। उस टाइम कस्टमर परचेज तो करना चाहता था, बट कस्टमर को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अकाउंट से पैसा भी कट जाए और मुझे सामान भी डिलीवर ना हो। सो बेसिकली उनको ये सब चीजें बहुत, कस्टमर को लगता था कि इस वजह से हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं करेंगे। तो बस जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वो सॉल्यूशन के फेल होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, अब जैसे इन दोनों ने, सचिन बंसल और विनी बंसल ने आइडेंटिफाई करा कि एक प्रॉब्लम आ रही है, तो कैश ऑन डिलीवरी का कंसेप्ट तब से बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ था। तो ये पॉपुलराइज कैसे हुआ था, फ्लिपकार्ट के आने के बाद। ओके, तो ये बेसिकली क्या था, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक थी। नेक्स्ट टेक्निक की हम बात करें, दैट इज वर्स्ट पॉसिबल आइडिया। वर्स्ट पॉसिबल आइडिया टेक्निक भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करती है कि वर्स्ट पॉसिबल आइडियाज, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होती है, बट वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने ये चीजें शेयर करी तो हो सकता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वर्स्ट पॉसिबल आइडियाज के थ्रू हम वर्स्ट आइडियाज भी लेते हैं, सो दैट बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट निकल के आए। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वर्स्ट पॉसिबल आइडिया जो थे वो रैपिडो के फाउंडर ने, मिस्टर पवन गुंतुपली ने स्टार्ट करा था। वर्स्ट पॉसिबल आइडियाज इन्होंने इनिशिएट लिया था कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो बेसिकली शायद लोगों को पसंद ना आए। अब जब रैपिडो की इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, रैपिडो के फाउंडर कौन है, पवन गुंतुपली। अब बेसिकली जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी रैपिडो की, तो इनके माइंड में एक डर था कि आप मान के चलो, मेकिंग अ वुमन सिट ऑन अ स्ट्रेंजर्स बाइक एंड गेट हर ड्रॉप टू हर डेस्टिनेशन इन एन इवनिंग इन एन स्मॉल टाउन वाज वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अगर फेल होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने इसी आइडिया पे काम करा, क्योंकि देखो ओला में अगर किसी एक पर्सन को ट्रैवल करना है, तो उसको पे तो उतना ही करना पड़ेगा, चाहे चार जने ट्रैवल करे चाहे एक जना ट्रैवल करे, पे आपको उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज बीइंग अ ड्राइवर, अगर मुझे ड्राइवरिंग करनी है ओला में, तो मेरे पास कार होनी चाहिए। अब हर कोई तो कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेसिकली रैपिडो के जो फाउंडर है, इन्होंने इन सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि भले ही ओला है मार्केट में और ओला यही सर्विस प्रोवाइड कर रही है,
लेकिन उसको इन कस्टमर के बारे में भी सोचना चाहिए, इन ड्राइवर्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो बेसिकली ड्राइविंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फोर व्हीलर नहीं है। तो उन्होंने अपने सिंपल इस आइडिया में क्या करा, फोर व्हीलर्स में से टू व्हीलर्स को हटा दिया और रेपिडो लेकर आए। ठीक है, तो रेपिडो कैसा था, बेसिकली वर्स्ट में से ही निकल के आया आपका रेपिडो। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये टेक्निक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर वे टू कैप्चर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन. They help users to understand concepts by breaking them down into their component parts. The technique is used to develop new ideas or to break down and better understand existing information. Until or unless you people won't use mind mapping, you are not able to find out the feasible solution of the problem. जैसे बीइंग अ टीचर मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करा है कि स्टूडेंट फिजिकली तो क्लास में बैठा होता है बट मेंटली क्लास में कभी नहीं बैठता। ठीक है, अब अगर आप मेंटली नहीं बैठ रहे, फिजिकली आप क्लास में बैठ रहे हो, तो आप कैसे चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी है। लास्ट टेक्निक है हमारी स्कैम्पर टेक्निक। स्कैम्पर बेसिकली एक्रोनिम होता है आपका सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, एडेप्ट, मॉडिफाई, पर्पस, एलिमिनेट और रिवर्स का। ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, existing services को और better करने के लिए। Yes, so I end up my session here with the very motivational quote: teacher can open the door, but you must enter it yourself. Thank you. I hope this session finds you well. This session finds you productive and knowledgeable. Thank you so much. Yes, thank you so much, sir. I would like to thank you. I would like to thank you for giving your precious time to the students. And I am sure the students must have learned a lot from all the examples that you gave. And I would like to thank Director, IMT College of Science and Technology, Dr. Poonam Pandey ma'am, and Dean Sir, IIMT College of Science and Technology, Dr. C.S. Yadav Sir, President, IIC and HOD BSc CS, Dr. Vishali, and convener IIC, Dr. Disha Vidyarthi, and all the coordinators of IIC. At last, I would like to thank all the students for listening to this very informative session. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.